A very fine good morning, students of class 12. Hope so everyone are doing well at their homes. So take care of yourself. First of all, like today I'm going to start with a very interesting topic from chapter 6, that is the Second World War, and today's topic is from page number 160 and the topic name is Cripps Mission. Today I'm going to say about the Cripps Mission. So first of all, before starting Cripps Mission, one incident which happened, like this incident will be connecting at the end of the movements which was introduced by Mahatma Gandhi ji. Okay, so first of all, the movement in the year 1940 में एक resolution पास हुआ. A resolution was passed which was named as Pakistan Resolution, and this resolution was passed by Muslim League. ठीक है, 1940 में एक resolution पास हुआ that was named as Pakistan Resolution which was passed by Muslim League. अब ये resolution क्या था? This resolution was basically about the Muslims. Actually Muslims they wanted different community. जहाँ पे Muslims की majority ज़्यादा है वहाँ पे उन लोगों को एक different community चाहिए था, which was like the places were like eastern part and northwest part. ठीक है, and this resolution was passed in Lahore. ठीक है, सो 1940 में ये इंसिडेंट था. एक्चुअली ये इंसिडेंट मैंने पहले इसीलिए बता दिया था क्योंकि आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट मुस्लिम लीग का कितना बड़ा रोल था, वो चीज़ आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन द नेक्स्ट टॉपिक. सो दिस topic will be connected with Indian National Congress, like how they were opposed with Indian National Congress. इसीलिए ये वाला मैंने पहले ही बता दिया. ठीक है, now let's come to the next thing. अब जब मुस्लिम लीग ने इस तरीके से कर दिया, now let's talk about today's topic, that is Cripps Mission. Now first of all, what was Cripps Mission? Cripps Mission, actually the head of Cripps Mission was Sir Stafford Cripps. He introduced Cripps Mission in the year of 1942. He introduced Cripps Mission in 1942. ठीक है, और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? सर स्टाफर्ड क्रिप्स. He was the head of this mission. Now, why Cripps Mission was sent in India? Why it was sent in India, or you can say why it came in India. ठीक है, अब इसका reason क्या था? The first reason which was said that Cripps Mission, they wanted, they said that this mission is basically for the constitutional proposal. Constitutional proposal means जो constitution से related है. ठीक है, but the main reason was not this. The main reason of Cripps Mission was before that, during First World War, Britain was one of the most powerful country. ठीक है, उस powerful country के time पे क्या हुआ कि after World War One क्या हुआ कि ब्रिटेन को ये चीज़ दिखने लगा कि साउथ एशिया का जो एक एरिया है, दैट इज जापान. साउथ एशिया का जो एरिया है जापान, वो भी पावरफुल है. rather than Britain, one more powerful country came into existence, that was जापान. क्योंकि जापान कहीं ना कहीं हर जगह ब्रिटेन को डिफीट कर रहा था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1. तो क्रिप्स मिशन का मेन मोटिव ये था. द फर्स्ट थिंग, reasons of Cripps Mission. So the first reason was support of Indians. Cripps Mission का सबसे पहला रीजन था they needed support of Indians in World War 2. ठीक है, नंबर second reason was ब्रिटेन का जो एलिट पावर्स था, एलिट पावर्स मीन्स जो उनके साथ में आते हैं, दैट इज USSR, China, these all pressurized Britain
pressurized Britain to take support of Indians. So these two were the main reasons for the Cripps mission. These two was the main reasons for the Cripps mission. अब नेशनलिस्ट लीडर को ये चीज पता चल गया, नेशनलिस्ट लीडर को ये चीज सो नेशनलिस्ट लीडर को ये चीज like they knew very well that for what reason Cripps mission has visited India. ठीक है, so nationalist leaders ने इसके बदले में they demanded few things. Now what were those things? Nationalist leaders demand, नेशनलिस्ट ने कुछ डिमांड्स किए, जिसमें से सबसे पहला आता है इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर. इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर, समझ में आया? इन विच दे डिमांडेड, द फर्स्ट थिंग वाज इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर. जो ब्रिटिशर्स के हाथ में, गवर्नमेंट में, वो इमीडिएट ट्रांसफर हो जाए इंडियंस के हाथ में. एंड द सेकेंड थिंग, after war, that is World War II, after war India should declare like they need complete independence. ठीक है, अब आफ्टर वॉर दे नीड कंप्लीट इंडिपेंडेंस. तो ये चीज था नेशनलिस्ट का डिमांड. ठीक है, डिमांड क्या क्या था? नंबर वन, इट वाज लाइक transfer of the power in Indians hand, and second one कि after war they want complete independence. So these two were the reasons of nationalist demand. अब इस चीज को क्या हुआ कि क्रिप्स मिशन ने अपने तरीके से इसको, इसके अगेंस्ट में एक प्रपोजल रखा, और वो प्रपोजल क्या था? प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन. प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन. अब ये प्रपोजल क्या था? द फर्स्ट वाज इंडिया विल बी अ यूनियन, मतलब इंडिया विल बी अ यूनियन कंट्री बट अंडर डोमिनियन स्टेट. इंडिया विल बी यूनियन बट अंडर डोमिनियन स्टेटस. इसका मतलब ये होता है कि इंडिया को एक यूनिटी में फॉर्म कर देगा, एक यूनियन में फॉर्म कर देगा, बट वो स्टिल रहेगा ब्रिटिश के हाथ में. अंडर डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है स्टिल दे विल बी लाइक ब्रिटिश विल ओनली अंडर द ब्रिटिश. ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये था कि आफ्टर द वॉर एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑर्गेनाइज होगा. ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑर्गेनाइज होगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पास होगा, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कुछ मेंबर्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कुछ मेंबर्स होंगे. ठीक है, उस मेंबर्स में one will be elected and one will be nominated. अब elected में the provisional assembly will elect the members will be elected by provisional assembly. मतलब जो मेन गवर्नमेंट करेगा. एंड नॉमिनेटेड में वो मेंबर्स रहेंगे जो प्रिंसेस इलेक्ट करेंगे. समझ में आया? सो ये था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का रोल. द थर्ड थिंग विच वाज देयर डिमांड लाइक प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन वाज डिफेंस ऑफ इंडिया. डिफेंस ऑफ इंडिया विल बी स्टिल इन द हैंड ऑफ ब्रिटिशर्स, दैट इज गवर्नर जनरल. समझ में आया? दैट इज गवर्नर जनरल. एंड द लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट ये था कि जब भी
लास्ट पॉइंट ये था कि जब भी इंडिया में से कोई भी पीपल या कोई भी सिटी या कोई भी छोड़ सकते हैं, कोई भी जाना चाहता है, देन दे कैन, ठीक है। दैट इज ऑल्सो नोन एज, आई लव दिस वन, ओके, दैट इज ऑल्सो नोन एज राइट टू secede। समझ में आ गया, राइट टू secede। अब इसमें क्लियरली ये पता चल रहा था कि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट भी चाहिए, इंडियंस का सपोर्ट भी चाहिए, बट कहीं ना कहीं दे वांटेड, मतलब उन लोगों को सपोर्ट भी चाहिए था, बट कहीं ना कहीं उन लोग इंडियंस के तरफ एक ईमानदारी नहीं दिखा रहे थे। क्योंकि यहाँ पे देखो, यूनियन बनेगा लेकिन डोमिनियन स्टेट में, डिफेंस रहेगा लेकिन ब्रिटिशर्स के हाथ में, कंस्टिट्यूएंट असेंबली रहेगा बट डिसर सिस्टम, राइट टू secede है मतलब ब्रेक ऑफ यूनिटी। सो दीज ऑल वर द रीजंस ऑफ against of the Indians. That's why somewhere Indian National Congress, that is Indian National Congress, they were totally against of this proposal. They were totally against of this proposal. So Indian National Congress, they were totally against this system, ठीक है। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्रिप्स मिशन का। And what was the reason of the rejection? समझाए? What was the reasons of rejection? रीजंस क्या था रिजेक्शन का? नंबर 1, डोमिनियन स्टेट्स अपने हाथ में ले रहे हैं, डोमिनियन स्टेटस अपने हाथ में ले रहे हैं, मतलब देयर इज नो कंप्लीट इंडिपेंडेंस। समझ में आया? पहला रीजन, डोमिनियन स्टेट्स अपने हाथ में रखे हैं, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है। दूसरा रीजन था राइट टू secede, जिसमें देयर इज नो यूनिटी, दे आर टॉकिंग लाइक राइट टू secede का मतलब है कि यूनिटी ब्रेक होगा। थर्ड थिंग वाज डिफेंस इन इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया। डिफेंस ऑफ इंडिया का मतलब है कि मतलब कि वो भी स्टिल ब्रिटिशर्स के हाथ में। एंड लास्ट वन वाज जो उन्होंने इमीडिएट ट्रांसफर का बात किया था, क्या चीज का? पावर का, इमीडिएट पावर ट्रांसफर का जो बात किया था, ट्रांसफर का बात किया था, उसका कोई प्लानिंग ही नहीं था, नो प्लानिंग। समझ में आया? सो these were the reasons for the rejection of Cripps mission by Indian National Congress. Indian National Congress ने इसको Indian National Congress ने इसको हटा दिया, खत्म किया, इसको रिजेक्ट कर दिया। समझ में आया? जिसमें इस रिजेक्शंस के बाद क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जब इसको रिजेक्ट किया, इन दिस रिजेक्शन वन थिंग हैपेंड दैट क्रिप्स मिशन वाज फेल्ड। आफ्टर रिजेक्शन अब वो फेल हो गया ना, इंडिया में उसका कुछ राज नहीं चला, क्योंकि वो जो प्रपोजल लेके आया था वो चीज़ नहीं हो पाया। तो इसको रिजेक्ट करने के बाद क्या हुआ, गांधी जी डिक्लेयर्ड इट एज पोस्ट डेटेड चेक। अभी पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? जिसका कोई काम ही नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम लोगों को एक चेक दिया, ठीक है, फॉर सम ऑफ रुपीज, उस चीज़ का चेक दिया। अब मैं बोलूँगी वो 10 साल 15 साल बाद उसको जाके कैश विड्रॉल करना होगा? नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट, जिसका कोई काम ही नहीं है। सो दैट इज व्हाट, जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है। सो दिस इज व्हाट गांधी जी डिक्लेयर्ड दिस हैज पोस्ट डेटेड चेक फॉर क्रिप्स मिशन। सो दीज ऑल वाज द सिस्टम ऑफ क्रिप्स मिशन। किस तरीके से इंडिया आया, किसने लाया, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए, व्हाट वाज द मेन रीज़न, इंटरनेशनल का क्या मतलब कि नेशनलिस्ट का क्या डिमांड था, उसके बाद उसके बदले में प्रपोजल क्या रखा क्रिप्स मिशन ने, उसके बाद रिजेक्शन किस लिए हुआ। सो दिस ऑल इज बीन described in today's topic. Tomorrow continue of the same topic, but
continue from the same thing but different topic, that is introducing Quit India movement. Clear? So if you have any doubt regarding this, you can just ask me. Thank you.